Dear friends, greetings to you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। So today also the God's mighty power inside the word of God is unchanged. और आज भी परमेश्वर की वो सामर्थ जो उसके वचन में है बदली नहीं है। So just to believe I am redeemed, I am blessed through the word of God. और इस बात पे यकीन करें कि हम बचाए गए हैं और हमारा उद्धार हुआ है यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। So the devil can't overcome you anymore. और फिर वो शैतान आप पे कभी भी हावी नहीं हो The सकेगा problem can't overcome anymore. और कोई भी आपकी परेशानी वो आप पे हावी नहीं हो The सकेगी। present situation of your mind and heart, you are struggling inside you, that kind of these problems are going to come to an end today. जो अपने दिल और दिमाग में जो भी परेशानी से इस समय आपकी लड़ाई चल रही है, आज आप उससे उभर के आएंगे। So in your home, the problem, the peaceless, the restless situation, it is going to be changed through the peace of God today. जो आज आपके घरों में जो भी परिस्थिति है, परेशानी है, आज इस वचन के द्वारा वो बदल जाएगी। So because Jesus Christ came into the world to bless us and to make us as the children of God. क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि हम आशीषित पाएं और हम उसके बच्चे ठहराए जाएं। So just believe I am the child of God. हमेशा इस बात पे यकीन रखें कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। Because how much you are believing in your mind, in your heart, it will be yours. और जितना आप अपने दिमाग में और अपने दिल पे यकीन करते हैं उतना ही हिसाब का होता है। So the God's word you are just receiving through your mind to your heart and believing, and you are receiving, so that will work in your life and there will be a great change in your life. और जितना ही आप परमेश्वर का वचन अपने दिमाग से सुन के लेते हैं, अपने दिल में ग्रहण करते हैं, उतना ही वो वचन आपके जीवन को बदलता चला जाता है। So all the unwanted, the negative words attacking you, it is going to be stopped today. और जो भी ऐसे शब्द हैं जो तो आपके दिमाग पे असर डालते हैं, आज वो रुक जाएंगे आना। So all the time the negative word will say, you can't receive the blessings of God. You will not be successful. You will not get it. Now such a way, several times the negative thoughts used to come and stop the blessings of God. और कई बार हमारे दिमाग में ऐसी बातें आती रहती हैं कि आप आशीषित नहीं होगे, आपके जीवन में कुछ काम नहीं होगा। आज हम उसको रोक देंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। So just believe I am going to receive the divine healing of Jesus Christ today. आज आपको इस बात पे यकीन करना है कि आज मुझे वो परमेश्वर की आत्मिक चंगाई मिल जाएगी। So the only one great blessing, the divine healing, it is from the Lord Jesus Christ. वो एक ही एक आशीष है जो आत्मिक आशीष है, वो सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमें दी गई है। So the divine healing, that means not only our physical healing, it is in our body, soul and mind. वो ऐसी चंगाई है जो सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारे दिमाग को, हमारी आत्मा को, हमारी स्पिरिट को मिलती है। So whenever we are enjoying the divine healing in our body, soul and mind, we are strengthened by the Lord to overcome all the situations. और जैसे ही वो चंगाइयाँ हमारे दिमाग में आती हैं, आत्मिक चंगाइयों को जब हम सुनते हैं, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में और हमारी आत्मा में वो भरती चली जाती हैं। So God will make you as a more than conqueror over the situations. और आज आपको परमेश्वर जो भी परिस्थिति आपकी है उसमें से उभारने वाला है। All the time you will say, I am more than conqueror. The one who is in me, the one who is in dwelling in me, he is greater than this world. आपको हर समय इस बात को कहते रहना है कि जो मुझ में है वो बहुत ही बलवान है उससे जो इस संसार में है, और इन बातों को दोहराने से आप हर परिस्थिति से उभरते चले जाएंगे। So Jesus can bless you today with a divine healing. और आज यीशु मसीह आपको उस आत्मिक चंगाई से भर देना चाहता है। So divine healing means, as I told you, not only the physical sicknesses, it is in your body, soul and mind. The divine healing will bring the peace in your family. You will not have any disturbance in your mind. All the time joy, joy, joy. That is the divine healing. और जो ये आत्मिक चंगाई है ये इस तरह की होती है कि आपके सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि ये आत्मा को, दिमाग को, आपकी सोच को बदल देती है और आप उस परमेश्वर के आनंद को महसूस करने लग जाते हैं जब आपको ये आत्मिक चंगाई मिलती है। So the divine healing
it will bring a great change in your life. और जब हम उस आत्मिक चंगाई को पाते हैं हमारा जीवन बदल जाता है. So you will, one particular stage of your spiritual status, you will fully empowered with the Holy Spirit. In that level, you will all the time, you will fully have the connection with the spiritual realm. In that pace, in that situation, you will never be shaken because your foundation is fully strong upon the mountain, the rock of ages. और जब आप उस आत्मिक चंगाई से भर जाते हैं तो आप ऐसी चट्टान पे खड़े होते हैं, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी हो वो आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर उस शांति का काम हो रहा होता है. So today God is going to give you such a divine healing. और आज ही आपको परमेश्वर वैसी वो आत्मा की चंगाई देना चाहता है. Even though you gone through the shadow of the death, the valley of sorrow, sicknesses, you will say, my Redeemer alive. My Redeemer is living God. He is a living Jesus. I am going to face tomorrow. चाहे आप उस मौत की तराई से भी होके गुजरे हों, पर आज आपको वो चंगाई मिलने वाली है, क्योंकि आपको पता है आपके बचाने वाला जीवित है और आज आपको वो बदल देना चाहता है उस आत्मिक चंगाई के द्वारा. So today, as a believer of God, you have to rise up in your faith. और आज परमेश्वर की विश्वासी होने के नाते अपने आप को उस विश्वास में खड़ा करना है आपको. Because the receiving the God's healing, the divine healing, through your belief. और परमेश्वर की उस आत्मिक चंगाई को आप तभी पा सकते हैं जब आपको यकीन है. So the faith, Hebrew 11:1, it says, the things are not, the substance not there, we are believing, that is the faith. और इब्रानियों 1 उसका 1 ये कहता है कि 11:1. इब्रानियों 11 उसका 1 कहता है कि हमारा अब विश्वास की आशा हुई वस्तुओं का निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है. मतलब कि हम अनदेखी चीजों का विश्वास करते हैं कि ऐसा परमेश्वर कहता है तो हमें होगा हमारे Today जीवन just believe your divine healing. में. और आज आप अपनी उस आत्मिक चंगाई को विश्वास से पकड़ लीजिए. You are here with a great plan and purpose. आप यहाँ पे लाए गए हैं क्योंकि परमेश्वर की योजना है. So God sent the little boy like David into the battlefield with a plan and purpose. और अगर हम दाऊद की कहानी देखते हैं, परमेश्वर ने ही उसे उस लड़ाई के मैदान में भेजा था जबकि दाऊद छोटा सा लड़का था. He just have the 100% faith on the name of the Lord. और उसको उस समय पूरा 100% विश्वास था यीशु मसीह पे. The faith fully believe I will overcome this giant. और उसको पूरा विश्वास था कि चाहे वो गलायत कितना भी बड़ा दानव क्यों ना हो वो उसे हरा देगा. The just believe he received the divine victory. क्योंकि उसके विश्वास के द्वारा उसने वो जीत हासिल करी. So are you fully thinking about your negative things like Goliath, the problematic situation today? Just believe. Just believe in your heart, you will overcome everything today. अपनी हर परेशानी को गलायत जैसा दानव ना बना दे. विश्वास करें कि आज आप उसे हरा देंगे और आप अपनी परेशानी से ऊपर उठ जाएंगे. So there is a 3 type of divine healing. और बाइबल में 3 तरीके की आत्मिक चंगाइयों के बारे में लिखा है. So number 1, whenever Jesus seen the people, those who are going through physical sickness, problem, evil spirit, he moved with compassion and touched and healed them. और हम देखते हैं बाइबल में जब यीशु मसीह ने लोगों को देखा जिनके ऊपर दुष्ट आत्माएं थी, उनके अंदर एक इतना कंपैशन, इतना उनका दिल भर आया और वो आगे बढ़े उनको चंगाई करने के So it लिए. is written in Mark chapter 1:32. मार्क 1:32. उसका 1:32 में इस तरह से लिखा है. Luke 4:40. और लूका 4 उसका 40 में भी ऐसा ही लिखा So है. this word of God says Jesus moved with compassion by seeing the people, those who are going through problem, and healed them, delivered them. This is the first step of the receiving the divine healing. और इसमें हम ऐसा देखते हैं कि यीशु मसीह उस कंपैशन के साथ उस बोझ के साथ आगे बढ़े और लोगों की चंगाइयां करी, और ये हम वचनों में देखते हैं. The second level of the healing is for the growing believers.
it is written in James 5:14. और दूसरी चंगाइयाँ उस तरीके की चंगाइयाँ हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जो विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं, जैसा हम याकूब James 5:14. उसके 5:14 में देखते हैं। So this word of God says, is anyone among you sick? Let them call the God's people from the God's church and to pray over them and anoint them with the oil in the name of the Lord. और इस वचन में इस तरह से कहा गया है कि अगर कोई भी विश्वासी बीमार है तो वो अपनी कलीसिया से उन बड़े लोगों को बुलाए अपने घर में प्रार्थना करने के लिए, ताकि वो आपके ऊपर तेल के साथ में, ऑयल के साथ में प्रार्थना कर सके। The prayer of faith will save the sick. और जो विश्वास की प्रार्थना होती है वो बीमार लोगों को चंगाई देती है। So the another level of the divine healing, this is a supernatural, because we have to depend on this. This is written in 1 Peter 2:24. और एक तीसरी तरीके की एक चंगाई है जो पहला पत्रस उसका 2:24 में लिखा गया है, जो एक डिवाइन, एक अलौकिक चंगाई है। So everyone, you take this word from your Bible, because this word of God is very important. हर कोई उस बाइबल के वचन को नोट कर लीजिए, पहला पत्रस 2:24। So this word of God, it says very clearly, we are redeemed through the blood of the Lamb. और ये वचन इस तरह से कहता है कि हम उस मेमने के लहू के द्वारा बचाए गए हैं। So this word of God clearly says Jesus made us righteous. और ये वचन इस तरह से भी कहता है कि यीशु मसीह ने हमें धर्मी ठहराया। So he took all our sin upon him. उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। So whoever believe this, they are already healed. और हर कोई जो इस वचन पे यकीन करता है वो चंगाई पाता है। So dear friends, today God want to bless you through this promise, 1 Peter 2:24. और प्रिय मित्रों, आज यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करना चाहता है जो एक पत्रस 2:24 में लिखा है। You have to come to a spiritual strong stand based on this word of God. और आपको अपने उस आत्मिक जीवन में एक मजबूती से खड़े रहना है इस वचन को जब आप समझ लेते हैं तो। So this word of God already says you are already healed. और ये वचन इस तरह से कहता है कि आप चंगाई पाए हुए लोग हो। So you have to believe that I am healed. और आपको इस बात पे यकीन करना है कि आपने चंगाई पा ली है। You are delivered. और आपका छुटकारा हो गया है। The problem in your mindset, the struggle going through in your mindset, it is over. और जो आपके दिमाग में जो लड़ाई चल रही थी वो खत्म हो गई है। The battle already over towards the victory. जो लड़ाई थी वो जीत में बदल गई है क्योंकि आप उसकी ओर बढ़ गए हो। You are going to be full of the God's presence all the time. और आप हर समय उस परमेश्वर की आत्मा से और उसकी मौजूदगी से भरे रहेंगे। So you have to today believe this word of God. I am healed by the blood of the Lamb. और आज आपको इस बात पे यकीन करना है कि उस मेमने के लहू के द्वारा मेरी चंगाई हुई है। So you have to believe that I am redeemed through the blood of the Lamb. और आपको इस बात पे यकीन करना है उस मेमने के लहू के द्वारा ही मेरा छुटकारा और मेरा बचाव हुआ है। Galatians 3:13 very clearly says Jesus Christ already redeemed us from the curse of the law. और गलातियों 3:13 इस तरह से कहता है कि यीशु मसीह ने हमें हर श्रापों से मुक्त कर दिया है। You have to believe that Jesus Christ already redeemed me. I am enjoying my redemption in Christ Jesus. आपको इस बात पे यकीन करना है कि यीशु मसीह ने आपका छुटकारा कर दिया है उन श्रापों से और आप उस आनंद को मनाएं क्योंकि उसने कर दिया है। So the divine healing, the supernatural, the divine healing from the 1 Peter 2:24, it will bring a great change in your spiritual life. और जब ये आत्मिक चंगाई हमारे जीवन में आती है, पहला पत्रस 2:24 हमारे जीवन में बहुत अद्भुत तरीके से काम करता है। So I'd like to read this word of God, 1 Peter 2:24. और मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, पहला पत्रस 2:24। It's from the amplified version. It says like this: Jesus personally carried my sin in his own body on the cross. और एम्पलीफाइड इंग्लिश का एक वर्जन है जिसमें इस तरह से लिखा है कि यीशु मसीह ने खुद ने हमारे पापों को अपने शरीर पे ले लिया। So willingly offering himself on it. और अपनी ही मर्जी से उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। As on an altar of sacrifice. इस तरह से कि हम एक उस Sacrifice, बलिदान. उस बलिदान के रूप में हमें हमारे लिए उसने अपने आप को दे दिया। So that we might
die to our sin, becoming immune from the penalty and power of sin. और ताकि हमारा छुटकारा हो जाए जो वंशों से हमारे जीवन में चला आ रहा था उसके इस बलिदान के द्वारा, And live for righteousness. और हम धार्मिकता का जीवन जी सकें। For by his wounds you who believe have been healed. और वचन कहता है उसके कोड़े खाने से जो इस बात पे यकीन करता है चंगाई पाएंगे। Today you believe I am healed, I am redeemed through the redemption of Christ. और आज अगर आप इस बात को यकीन करते हैं कि आपने चंगाई पाई है यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा, The negativity can't touch me anymore. तो बुरे विचार आपको छू नहीं सकेंगे। The evil spirit can't speak to my ears anymore. दुष्ट आत्माएं आपको कानों से और बात नहीं कर सकेंगी। I am redeemed through the blood of the Lamb. आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए गए 1 हैं। Peter 2:24, I am also having the strong stand on the promises of God. I am already healed. पहला 2 पत्रस 24 इस तरह से कहता है कि उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं और हम इस बात पे दृढ़ता से खड़े रहेंगे। As a believer, you have to take a strong decision today in your life. और विश्वासी होने के नाते आपको इस बात को अपने लिए तय कर लेना है आज। Don't talk the worldly style talk anymore. संसारिक लोगों के जैसे बातचीत ना करें। Sometimes when the sickness come, we used to also talk about more about the sickness in detail. और कई बार अगर हमारे शरीर में, अगर हमारे जीवन में हम बीमारी को देखते हैं तो हम उसे इतनी लंबी बातें करके एक दूसरे से बताते हैं। By one word we have to resist the devil. The devil used to brought the sicknesses into our body. सिर्फ वचन के द्वारा उस शैतान के आगे अड़ के खड़े हो जाना है, क्योंकि वो हमारे शरीर के अंदर उस बीमारी को लेके आया है। Immediately we have to resist the devil according to James 4:7. और एकदम से याकूब 4:7 के हिसाब से आपको शैतान के आगे अड़ के खड़े हो जाना है। Resist the devil, he will flee away from you. उसके आगे अड़ के खड़े हो जाओ और वो भाग जाएगा आपको छोड़ के। Immediately if you are going through any weakness in your body, you have to confess this 1 Peter 2:24. अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, अगर आप बीमार है तो आपको पहला पत्रस 2:24 को डिक्लेयर करना है। You have to confess and you have to declare, I am healed by the blood of the Lamb. आपको इस वचन को बोल के अपने दिमाग में अपने अंदर बिठा लेना है, बोलना है, ताकि आपके कान सुन सके, आप सुन सको कि हाँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैंने चंगाई पाई है। Several times we are talking more about the sickness in history in detail. और बहुत बार हम ऐसा होता है हम बीमारी का पूरा इतिहास बता देते हैं दूसरों को। We are not resisting the sickness through the word of God. और हम उस बीमारी को रोकते नहीं है परमेश्वर के वचन के द्वारा। We used to talk, yes, my father also had the same sickness. और हम बोलते हैं हमारे पिता को भी ऐसी ही बीमारी हुई थी। My father's father also had the same मेरे sickness. दादाजी को भी ऐसी बीमारी थी। Not like that. हमें ऐसे नहीं बात करनी। This word of God is full of power and authority. ये परमेश्वर का वचन पूरे अधिकार और सामर्थ से भरा हुआ है। As a children of God, you have to receive the great deliverance through the word of God. यीशु मसीह के परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आज आपके जीवन में छुटकारा आना ही चाहिए। Instead of speaking about the sickness, speaking more about the blood of Jesus. अपनी बीमारियों के बारे में ज्यादा बोलने की जगह अगर आप यीशु मसीह के उस लहू के बारे में बोलें, So that's why the Bible very clearly says, once the evil spirit left from one home, और बाइबल साफ कहती है कि अगर एक दुष्ट आत्मा एक घर को छोड़ के जाती है, the home is again also it is very empty. It will come, oh this home is empty, I can come and stay again. और अगर वो फिर देखती है कि ये घर जिसको मैं छोड़ के गई थी अगर ये खाली ही है तो आ जाती हूँ दोबारा और इसमें रहने लग जाती हूँ। So in our mind also the same situation. Many people several times they heard the word of God, but they used to take the same stand as on now. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं पर फिर भी वैसे ही करते हैं जैसे संसार के लोग करते हैं। The old history, the old record, they used to speak the same. वो हर समय वही पुरानी बातों को दोहराते रहते हैं, वही करते चले जाते हैं परमेश्वर के वचन को, जीवित वचन को सुनने के बावजूद भी।
As a God's people, we have to resist the devil, resist the sickness. परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें शैतान को रोकना है, अपने अधिकार को दिखाना है। Psalm 91:10 very clearly says, no sickness will come near your home. भजन संहिता 91:10 कहता है कि कोई भी बीमारी आपके घर को ना छुएगी। You have to confess and believe these promises of God. आपको डिक्लेयर करना है, अंगीकार करना है परमेश्वर के वचनों को और मानना है। Every believer, you have to start to believe the word of God and change your mind today. और हर विश्वासी को जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है उसके वचनों को समझना है और विश्वास करना है और अपनी सोच को बदल देना This है। 1 Peter 2:24, you have to write in a big chart paper and paste it everywhere in your home. पहला पत्रस 2:24 अगर आप घर जाके इसे बड़े चार्ट पेपर पे लिख ले और जगह जगह लगा दे ताकि अब इसे पढ़ते चले जाएं। You have to all the time by reading that, I am healed, my home, my family healed. We are free from sickness. आपको हर समय उस बात को बोलते चला जाना है कि मैंने चंगाई पाई है, मेरे परिवार ने चंगाई पाई है, मेरे इस घर ने चंगाई पाई है। This word of God is the great spiritual stand we have to take as a believer of God. और ये वचन इस तरह का एक ऐसा वचन है जिस पे हम दृढ़ता से खड़े हो सकते हैं, मजबूती से खड़े हो सकते हैं। We should not talk about the sickness, the negative things anymore. और अब हमें उन बीमारियों के बारे में बात नहीं करनी और ना ही निराशा की बातें करनी है। Sometimes we used to talk about, oh, in our family, one person had an infection of cold, so this cold will come to everyone one by one. Now the two persons now affected, another two we have to affect by the same kind of a infection. This is the thinking of the flesh. और कई बार हम ऐसी बातें करते हैं कि हमारे घर में एक को जुकाम हो गया, अब दो को हो गया और हम बोलते हैं अब दो को, बाकी जो दो बचे उनको भी हो जाएगा क्योंकि हमारे दिमाग में ये बैठ गया है। We should change. हमें बदलना है इसको। We have to climb this Bible very clearly. No sickness will come near my house anymore. जो आप वचन पढ़ते हैं उसको बोलना है, अंगीकार करना है क्योंकि बाइबल कहती है कि कोई भी बीमारी आपके घर का हिस्सा नहीं है। So as I told you, sickness means the problem also. और जैसे मैंने आपको बताया बीमारी का मतलब परेशानियां भी होती हैं। The youngsters, several times they used to distract through many things. जो छोटे बच्चे हैं वो बहुत सारा भटक जाते हैं अलग अलग चीजों से। So today you just believe, no problem will touch my mind anymore. और आज आपको विश्वास करना है कि कोई भी परेशानी आपके दिमाग को नहीं छू सकती है। Because Jesus already cleansed me through the blood of the Lamb. और क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे चंगाई दे दी I है। am already healed through the blood of the Lamb. मैंने यीशु मसीह के लहू के द्वारा चंगाई पाई है। No sickness can dwell in my body anymore. कोई भी बीमारी मेरी शरीर का हिस्सा नहीं हो सकती है। Whatever may be the sickness name, that is doesn't matter. Today if you believe, you see the glory of God. चाहे उस बीमारी का नाम कुछ भी हो, आज कोई उस बात का मायने नहीं रखता क्योंकि आप परमेश्वर की इस महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। No sickness will touch my home anymore. कोई भी बीमारी आपके घर को नहीं छू सकती All है। the time we will talk about the blood of the Lamb and the word of God and the Holy Spirit. हर समय आप परमेश्वर के उस लहू के बारे में बात करें, पवित्र आत्मा के बारे में बात करें और वचनों के बारे में बात करें। All the time my mind should be the mind of Christ. हर समय आपके दिमाग में परमेश्वर जैसा ही दिमाग होना चाहिए। I will not talk anything about the negative things anymore. और अब आप कोई भी निराशा वाली बातें, अविश्वास वाली बातें अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। I will never say, I will never confess through through my mouth, I am having a pain in the back, pain in this bone, collarbone, this bone, that bone, nothing. आज आपको इस बात को अपने दिल में बिठा लेना है कि आज से आप नहीं कहेंगे कि मेरे शरीर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, इस हड्डी में दर्द है, उस हड्डी में दर्द में नहीं बोलना है। Bible clearly says you belongs to the bones of Jesus Christ. बाइबल साफ साफ कहती है कि यीशु मसीह की हड्डियों से आप पकड़े गए हो। You belongs to the flesh of Jesus Christ. यीशु मसीह के उस माह से, उस लहू से, उस शरीर से आप पकड़े हुए हो। You belongs to the powerful blood of Jesus Christ. आप उस यीशु मसीह के सामर्थी लहू में पकड़े हुए हो। All the time talk about the 1 Peter 2:24. हर समय पहला पत्रस 2:24 के बारे में बात करें। Jesus Christ already took my sickness upon him यीशु on the cross. यीशु मसीह ने मेरी बीमारियों को उस क्रूस पे उठा लिया है मेरे लिए। My body belongs to Jesus. मेरा शरीर यीशु मसीह से ही बिलोंग करता है। My body is the temple of the Holy Spirit.
जो मेरा शरीर है वो पवित्र आत्मा का घर The है। Holy Spirit is dwelling in my entire body. पवित्र आत्मा मेरे पूरे शरीर के अंदर रहता है। All the time I'm enjoying the sweet presence of the Holy हर समय मैं Spirit. उस आनंद का, उस अद्भुत आनंद का एहसास करता हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। Automatically your house will be filled with the blessings of the kingdom of heaven. और अचानक ही ऐसे होता चला जाएगा कि जो आपका घर है वो उस पवित्र आत्मा से, उस परमेश्वर के राज्य से भरता चला The जाएगा। kingdom blessings belongs to you. जो परमेश्वर की राज्य की आशीष है वो आप लोगों के लिए है। Jesus already took all your poverty, all your infirmity upon him. यीशु मसीह ने आपकी हर गरीबी को, हर मुश्किल को अपने ऊपर ले लिया है। He took all your financial problem upon him. जो भी पैसे की दिक्कत आप देख रहे हैं उसने उठा ली है आपके ऊपर से। You have to believe that I am redeemed today by the blood of the Lamb. आपको इस बात का अंगीकार करना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप बचाए गए हैं। I am a rich person through Jesus मैं Christ. यीशु मसीह के द्वारा बहुत ही अमीर हूँ। I am already blessed through Jesus मैं Christ. यीशु मसीह के द्वारा बहुत ही आशीषित हूँ। I am already blessed with the divine healing in my मेरे life. शरीर में, मेरे जीवन में एक आत्मिक चंगाई को मैं ले रहा हूँ। In my home there is a abundance of the blessings of the kingdom blessing. मेरे घर पे बहुतायत की आशीष आ रही है जो परमेश्वर के राज्य की आशीष है। I am enjoying the kingdom blessings in my life. मैं अपने जीवन में उस परमेश्वर के राज्य की आशीषों को ले रहा हूँ। That's why the Bible says the kingdom of God, the kingdom of heaven is in you. इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य आप लोगों के अंदर है। Today, how many of you want to receive the divine healing from the Lord? आज कितने ही लोग हैं उस आत्मिक चंगाई को चाहते हैं अपने How जीवन many में। of you are going to enjoy the 1 Peter 2:24 all the time? आप में से कितने लोग हैं पहला पत्रस 2:24 को हर समय अपने जीवन में उस आनंद को मनाते रहना Right चाहते now, हैं। you put your hand upon your और head. आए अपने हाथों को, अपने एक हाथ को उठा के अपने सर पे You रख ले। start to claim the God's power from the word of God. आपको उस परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने ऊपर बोलना है। Everyone, you close your eyes right हर now. कोई अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। This is the time today the Lord is going to bless you with the divine ये healing. वो समय है जो परमेश्वर अपनी आत्मिक चंगाई से आपको चंगाई देना चाहता I है। am redeemed through the blood of the मैंने Lamb. चंगाई पाई है यीशु मसीह के उस मेमने के लहू के द्वारा। I am already healed from all sicknesses. मैं हर बीमारी से मैंने चंगाई पाई है। My body is the temple of the Holy मेरा Spirit. शरीर पवित्र आत्मा का घर है। The evil spirit can't touch me कोई anymore. भी दुष्ट आत्मा मुझे छू नहीं सकती है। I am redeemed. मैं बचाया गया हूँ। Open your mouth and confess your faith right अपने मुंह को now. खोले और इस बात को बोले अपने मुंह से कि मैं बचाया गया हूँ यीशु मसीह के लहू के द्वारा। I will not backslide anymore in my और मैं life. अपने जीवन में कोई भी बुरी बातों को ना करूंगा। I will overcome all the temptation. और मैं हर वो बातें जो मुझे बहकाती है मैं उनसे ऊपर आ जाऊंगा। Because I am already filled with the Holy Spirit, the flesh, the temptation, the sinful thoughts, the sinful lustful sins can't touch me क्योंकि मैं anymore. पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, इसलिए इस दुनिया की कोई भी बहकाने वाली बातें मेरे दिमाग को, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को बहका नहीं सकती है। Everyone, you open your mouth and confess your faith right हर now. कोई अपने मुंह को खोले और इन बातों को अपने मुंह से अपने ऊपर बोले। How much you are claiming the promises of God. और आप कितने ही उस परमेश्वर के वादों को अपने लिए बोलते हैं। You are delivered right now. You are healed right now. आपने छुटकारा पाया है इसी समय और आप चंगाइयां भी पा रहे हैं। You are free from आप sickness. बीमारी से फ्री हो रहे हैं। The divine healing is coming upon you right आत्मिक now. चंगाइयां आपके ऊपर उतर रही हैं। Just believe and receive your healing इस बात को now. यकीन करिए और अपने जीवन में ले लीजिए। Those who gone through sickness, just believe I am already gone through. Hereafter the sickness will not touch और me. कोई जो बीमारी से होके गया है आज इस बात को बोलिए कि वो खत्म हुआ क्योंकि परमेश्वर के लहू से मेरा छुटकारा हो चुका है। No more look upon your old report anymore. अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को दोबारा मुड़ के ना देखना, Because you are already क्योंकि healed. आप यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाए हुए लोग You are हैं। already आपका delivered. छुटकारा हो गया है। Jesus Christ is written a new report about you today. यीशु मसीह ने आपके लिए एक नई रिपोर्ट लिख दी है। Just believe the good report. यकीन करना है उस अच्छी रिपोर्ट के ऊपर। Now the Holy Spirit is coming upon every one of you. पवित्र आत्मा उतर रहा है इस समय में सब लोगों के ऊपर में। This is a God's plan. You have to enjoy the kingdom blessings in your यही life. परमेश्वर की योजना है कि आप परमेश्वर की उस राज्य की
के बारे में और उसकी आशीषों को अपने जीवन में लें। All the financial problems are going to be leave your family हर today. कोई पैसे की दिक्कत इसी समय आपके परिवारों को छोड़ के जाए। Just confess your faith. I am rich through Jesus आपको इस Christ. बात का अंगीकार करना है कि यीशु मसीह के द्वारा मैंने अमीरी पाई है। I am blessed through Jesus मैं यीशु Christ. मसीह के द्वारा आशीषित हुआ हूँ। I am enjoying the kingdom blessings in my मैं परमेश्वर life. के राज्य की आशीषें अपने जीवन में पा रहा I हूँ। will not lack anything in my मुझे किसी life. चीज की घटी ना होगी। The sickness can't touch my doorpost जो anymore. बीमारी है वो मेरे घर के आंगन को भी नहीं छू सकती There is है। no one is feeble in the tribe of Israel. और कोई भी ऐसा नहीं था इस्राएल के अंदर जो बीमार था। We are the spirit-filled और Israelites. हम उस आत्मा से भरे हुए इस्राएली लोग हैं। All the blessings written in the Bible belongs to me. जो भी बाइबल में आशीषें लिखी है वो आप लोगों के लिए लिखी है। According to Acts 1:8, when the Holy Spirit come upon you, you shall receive the power. जैसे प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, जैसे पवित्र आत्मा उतरा आप सब ने सामर्थ को पाया। Now the same anointing is going to be come upon every one of वही you. सेम अभिषेक इस समय में आप लोगों के ऊपर उतर रहा है। If you are filled with the Holy Spirit, आप पवित्र आत्मा से भरते चले जाएं। no more sickness can't dwell in your body कोई anymore. भी बीमारी आपके शरीर में नहीं बढ़ सकती है। No more any pain can't dwell in your body कोई भी anymore. दर्द आपके शरीर में नहीं बढ़ सकता है। Now the Holy Spirit is coming upon every one of पवित्र you. आत्मा इस समय आप लोगों के ऊपर उतर रहा है। Everyone rejoice with the Holy Spirit आनंद से भर now. जाए उस पवित्र आत्मा से। Rejoice with the Holy Spirit. आनंद से भरते चले जाए उस पवित्र Speak आत्मा the से। heavenly language with unspeakable अन्य joy. भाषाओं में बात करें आपको अगर आता है तो अपने Holy मुंह को खोलें। The Holy Spirit is filling you. पवित्र आत्मा आपको भर रहा है। Filling भर you. रहा है। Receive the Holy लेते चले जाए पवित्र Spirit. आत्मा को। Receive the Holy लीजिए पवित्र Spirit. आत्मा को अपने जीवन The में। evil spirit can't touch you कोई anymore. भी दुष्ट आत्मा आपको नहीं छू सकती है। Now all the evil spirits are leaving from your body निकल right जाए यीशु now. मसीह के नाम से वो दुष्ट आत्माएं आपके शरीरों से। All the wicked evil spirit get out from your children's body right हर वो now. बीमारी की आत्मा निकल जाए आपके बच्चों के अंदर से। Set them free now in Jesus' आजादी पाए name. यीशु मसीह के नाम में। Thank you, Lord, for your deliverance. धन्यवाद परमेश्वर Now आजादी the के Lord लिए। is ready to fill you with the spiritual gifts today. और आज पवित्र आत्मा उस आत्मिक वरदानों से आप लोगों को भर देना चाहता Today है। onwards, you are going to walking with the promises of और God. आज से आप परमेश्वर के उन वादों में चलेंगे। You are going to resist the devil with the word of और आप God. शैतान को हराएंगे परमेश्वर के वचनों के द्वारा। How Jesus overcome the devil कैसे यीशु मसीह ने शैतान को हराया? through the word of God. परमेश्वर के वचन से। The same way you are also going to speak the word of उसी तरह God. आप भी आज से परमेश्वर के वचन से शैतान को हराएंगे। Start to speak the word of God right परमेश्वर के वचन now. को बोलना है। Start to speak the prophetical word right वो now. भविष्यवाणियों के वचनों को अपने ऊपर बोलना है। No weapon formed against you never prosper. कोई भी शैतान की चीज आपके ऊपर बढ़ावा नहीं लेगी। There is no sorcery against Israel. कोई भी जादू टोना याकूब के घराने के ऊपर काम ना करेगा। Because Jesus Christ already crushed the Satan under his feet. क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को अपने पैर के नीचे कुचल दिया है। Just believe and receive your deliverance इस बात को now. यकीन करें और अपने जीवन में उस छुटकारे को ले The लीजिए। mighty power of the Holy Spirit is उस coming. पवित्र आत्मा की सामर्थ आप लोगों के ऊपर उतर रही है। Everyone be filled with the Holy Spirit आप पवित्र आत्मा now. से भरते चले जाएं। Everyone be filled with the Holy Spirit पवित्र आत्मा से now. भरते चले जाएं। Thank you, Lord, for your deliverance. धन्यवाद परमेश्वर इस छुटकारे के लिए। Lord, let your children read the Bible more and more. परमेश्वर होने दे तेरे बच्चे और तेरे वचनों को पढ़े। No one should waste their time with unwanted worldly कोई things. भी अपने समय को बर्बाद ना करे संसारिक चीजों में। Lord, let your children pray more. होने दे परमेश्वर बच्चे तेरे और प्रार्थना करें। Thank you, Lord, for your supernatural blessing. परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ उस अलौकिक आशीषों के लिए। Help your children to grow in their spiritual ताकि life. तेरे बच्चे उस आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएं। Everyone grow in their spiritual ताकि वो life. आत्मा के जीवन में बढ़ते चले जाएं। Every home should be filled with the Holy हर घर Spirit. पवित्र आत्मा से भरा हो।
all the home there should be a prayer all the हर time. घरों में ऐसा हो कि हर समय प्रार्थनाएं होती रहे। Every home, all the time, all the 24 hours, prayer should be happen, Lord. घरों में हर समय प्रार्थना और प्रार्थना ही होती चली जाए। Thank you, Lord, for your deliverance. धन्यवाद परमेश्वर इस छुटकारे के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.